Hello students, now we will begin with our seventh chapter, that is experiments with water. What floats, what sinks. Now we will see. Aisha was waiting for dinner. Today Ami was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha, she was waiting for the dinners as her favorite food was being going to be cooked by her mother. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. First of all, what did she saw? That uh, as her mother rolled out the puri, and when she put the puri in the oil, first what happened, the puri sank मतलब कि वो डूब गई अंदर. As it puffed up, जैसे ही वो फूलने लगी, the पूरी came up and started floating on the oil. और जैसे ही वो पूरी puff हो गई तो वो क्या हो गई, float होने लगी, मतलब oil के ऊपर वो तैरने लगी. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. आयशा ने क्या किया फिर कि एक डो लिया, उसको रोल किया बॉल की तरह, एंड शी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर. फिर उसने वो क्या किया, फ्लैटन करके उसको एक बाउल में डाल दिया जिसमें वाटर था. अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. क्या हुआ कि वो सैंक हो गई, जो उसने रोल करके वाटर के अंदर डाला था डो, तो वो फ्लैटन करके उसमें डाली पूरी उसने, तो वो सैंक हो गई एंड वो वहीं पे गई. Think what would happen if. Now see, Aisha put a puffed puri in a bowl of water. Would it sink or float? जो पफ पूरी थी वो भी वाटर में क्या करती, सिंक हो जाती या फ्लोट होती. दैट यू हैव टू आंसर. यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन गेट योर आंसर. सी, जो डेंसिटी जो वेट होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी थिंग है वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी. यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. जैसे स्टील की स्पून है या प्लेट है, आप कुछ भी है, आप एक्सपेरिमेंट करके ये ट्राई कर सकते हो. आप देख सकते हो कि अगर आप ये चीज़ अंदर डालोगे तो उसकी वेट की वजह से क्या होगा, वो वाटर के अंदर सिंक हो जाएगी. Would the cap of a plastic bottle sink or float in a water? एक कैप ले लो आप प्लास्टिक बॉटल का, और उसको अगर आप डालोगे तो वो प्लास्टिक का होगा, तो वो फ्लोट करेगी, सिंक नहीं करेगी, एज उसकी जो डेंसिटी है वो मतलब वो लाइट होगा वेट के अंदर. इन द इवनिंग Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. आयशा की मदर चिल्लाने लगी कि तुमने वापस जो सोप है वो वाटर के अंदर गिरा दिया है. टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस. जस्ट टेक इट आउट, फिर उसे और कहा गया है कि आप निकालो और उसको सोप केस के अंदर रख दो. आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स. वो इतनी जल्दी जल्दी में थी कि जो सोप केस था वो भी उसके गिर गया उसके अंदर, और वो क्या होने लगा, फ्लोट होने लगा. Now Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. उसने क्या किया, सोप था वो भी उसके अंदर डाला तो वो सोप के साथ भी सिंक करने लगा. Have you seen that something float on water while others sink? ऐसे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने आप भी कर सकते हो, घर पे ट्राई कर सकते हो. कुछ चीज़ें जो है वो फ्लोट कर सकती है और कुछ चीज़ें फ्लोट नहीं कर सकती है. Do this experiment. Now you have to do this. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Now you have to do it yourself only, and one by one you have to put down the things in the water and you have to write down your observation. Fill this table in your textbook. Now see, is it magic? After finishing this the table, now see we will continue. When Aisha woke up in the morning,
Ammi had fever. Now, when she woke up, her mother, she was suffering with fever. Abu made some tea and went to give medicine to Ammi. He told Aisha that you boil eggs. आयशा को उसके फादर ने एग्स बॉईल करने के लिए कहा एंड ऑल्सो सेड दैट पुट सम सॉल्ट इन द वाटर. आयशा टुक वाटर इन अ पॉट. बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. नाउ व्हाट हैपन, बाय मिस्टेक ना आयशा से क्या हो गया कि गलती से ज़्यादा सॉल्ट उसमें वाटर के अंदर गिर गया. नाउ उसने देखा कि जो एग्स वो बॉटम के ऊपर थे वो क्या हो गए, फ्लोट होने लगे. कैन यू टेल मी, आप गैस कर सकते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा. नाउ सी, टेक सम वाटर इन ए ग्लास, पुट अ लेमन इन इट. आपको उसके अंदर लेमन डालना है. नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर हाफ अ स्पून एट अ टाइम. थोड़ी थोड़ी देर में आपको जो सॉल्ट है वो डालते रहना है. Were you able were you able to float your lemon in water? What do you think? The lemon floated in salty water. ऐसा क्यों हुआ होगा. First we'll talk about Dead Sea. अब देखो, all oceans and seas, ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर. जो सारे ओशंस और सीज है उसमें कैसा वाटर है, सॉल्टी है. द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी. सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट जो सी है वो डेड सी है. हाउ सॉल्टी, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. आपको इमेजिन करना है कि 1 लीटर ऑफ वाटर आप ले रहे हो और उसके अंदर आप 300 ग्राम्स सॉल्ट डाला हुआ है. would you able to even taste such salty water, क्या आप उसको टेस्ट भी कर पाओगे. it would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. She will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in salty water. Now you can understand ना that जो ये डेड सी है वो इतनी सॉल्टी सी है कि अगर किसी को तैरना नहीं आता है तो भी वो उसके अंदर ड्राउन मतलब डूब नहीं जाएगा. बिकॉज ऑफ दी सॉल्टी वाटर. सॉल्टी वाटर की वजह से क्या होता है कि जो सारी चीज़ें होती है वो फ्लोट करने लगती है, वो सिंक नहीं होती है. दैट इज़ वाई यहाँ पे बताया गया है कि डेड सी में अगर किसी को तैरना नहीं आता है तो भी वो डूब नहीं सकता है. So that was the reason why eggs also floated and the lemon also floated. Now we will see what dissolves and what did not. मतलब क्या चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती है. On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारा. एक स्वीट डिश है, आप सबको पता है शक्करपारा क्या है. अम्मी said, let me come back from the market, then I will make some for you. मतलब मैं मार्केट से वापस आ जाऊँ then मैं बना दूँगी. Why don't you help me? आपको क्या करना है, हेल्प करने के लिए कहा गया उनको कि टेक 2 glasses of water and a bit of बाउल ऑफ शुगर इन इट. और आपको एक बाउल शुगर उसके अंदर ऐड कर देना है एंड उसको मिक्स करना है जब तक वो डिज़ोल्व ना हो. हमें thought let me finish this work fast then I will watch TV. तो सोचो कि उसने क्या क्या किया होगा हामिद ने डिज़ोल्व करने के लिए. देखो अगर हम स्पून से बार बार उसको मिक्स करते रहेंगे तो वो आराम से उसके अंदर वो मिक्स हो जाता है. ठीक है. सो उसने शायद गैस पे भी रख सकता है वो ताकि वो फटाफट डिज़ोल्व हो जाए. अंडरस्टूड. तो हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि क्या डिज़ोल्व कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते. ऐसी आप शुगर को जैसे ही ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी. ओके. इवन सॉल्ट है वो भी, जैसे आप इवन टी और शुगर, आप जब चाय बनाते हो तो चाय का देखते हैं कि टी और
शुगर दोनों ही ऐड करते हैं हम मिल्क के अंदर, तो जो शुगर है वो तो उसके अंदर मिक्स हो जाती है और जो टी है वो अपना कलर उसमें दे देती है, वो कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होती है। मतलब कुछ चीज़ें होती है वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल है, मतलब वो डिजॉल्व हो जाती है, और कुछ है वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं है, कुछ चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाती है। नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, you have to take 4 to 5 glasses, bowls, or bowl, take any of this and spoon water. Now you have to take the things which is listed below and you have to do this experiment and write down your observation, what you know, what you see, what you observe, you have to note down in this table. जो सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क और ऑयल, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है और आपको बताना है कि वो डिज़ोल्व होती है या नहीं होती है और क्या होता है उसके बाद, सिंक हो जाती है, सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, all these things, and just answer the questions afterwards. Okay, now see, while they were doing experiment, Aisha and Hamid, they both had an argument. Aisha felt that after stirring it the oil dissolved in water. Aisha ये बता रही थी कि हम उसको बार बार हिलाने से जो ऑयल था वो उसके अंदर डिजॉल्व हो गया, लेकिन हामिद जो है वो एग्री नहीं था इस बात से। What did he say? That look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water. मतलब अभी भी आपको येलो ड्रॉप्स जो है वो उसमें देख सकते हो। आयशा said, let's wait for some time and then see. देखो, ऑयल जो है वो डिजॉल्व नहीं कर सकता है, वो क्या होता है, वाटर के ऊपर सिर्फ फ्लोट ही करता है, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन दी वाटर। आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ अ टिफिन बॉक्स, उसने टिफिन बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो कि उसने 2 ड्रॉप्स डाले, एंड नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन। शी टिल्टेड द लिड, आप देख सकते हो उसने कैसे उसको टेढ़ा कर दिया, एंड शी सॉ सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली व्हाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे पहले आ गई होगी, वाटर, देन जो शुगर सॉल्यूशन था वो, एंड देन ऑयल, जो आप देख सकते हो कि कितना स्लाइटली मूव हुआ है। ठीक है, दिस यू कैन राइट, और आप खुद ही भी ये देख सकते हो कि ये कैसे हो सकता है। Now where did the water go? One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. टी बनाने के लिए स्टव के ऊपर वाटर रखा बॉईल करने के लिए। वो इतनी बिजी हो गई that she forgot about it. Then she remembered and came to check. She found very little water left in the pan. Now think, where did the water go? अब water कहाँ गया होगा, बता सकते हो आप? जो वाटर है वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, जैसे उसको ज़्यादा बॉईल करने लगे। समझ में आया? इसीलिए हमने देखो आगे चैप्टर पढ़ा था मैंगोज वाला, उसमें चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू थे। दे केप्ट द मैंगो जेली इन द सन, क्यों रखा था, ताकि उसमें से जो एक्सेस वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाए, ताकि वो अगर उस आम पापड़ को स्टोर कर रहे हैं तो वो बिगड़ ना जाए, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो वो बिगड़ जाएगा, इसीलिए उसको ड्राई करने के लिए सन में रखा गया था, ताकि जो सारा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे हाउस में भी जो हम ड्राई करने के लिए रखते हैं। फॉर एग्जांपल इवन क्लोथ्स, हम हमारे क्लोथ्स बाहर रखते हैं ताकि वाटर इवेपोरेट उसमें से हो जाता है ना जब हम हमारे कपड़े सुखाते हैं तब। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट हाउ वाटर इवेपोरेट्स, हम बता सकते हैं। Now let's see one movement that was done by गांधी जी, that is दांडी मार्च। ये जो इंसिडेंट है प्लेस हुआ था 1930 में, बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ, क्या लॉ बना दिया, दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ, कि वो सॉल्ट अपने आप बना नहीं सकते हैं। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और क्या कर दिया कि सॉल्ट के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया। By this law, people could not make salt even for use at home. और इतना होने के बावजूद भी वो सॉल्ट नहीं बना पा रहे थे। दैट वॉज कि अपने हाउस के लिए भी वो यूज़ कर सके इतना भी। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट, गांधी जी ने कहा। हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन। गांधी जी का कहना था कि जो हमें नेचर से मिला है तो वो चीज़ हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते, कोई हमें कैसे रोक सकता है। विद सेवरल अदर पीपल
ही वेंट ऑन अ यात्रा, एक बड़ी सी यात्रा पे गए, मतलब लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी, डांडी सी शोर है गुजरात में, टू प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ, अगेंस्ट दिस लॉ, ये जो लॉ था सॉल्ट का बनाया था उसके अगेंस्ट। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? देखो, द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स, डग इन दी सैंड, सैंड के अंदर शैलो बेड्स जैसे उसको डग कर देते हैं, एंड फिर क्या करते हैं, जो वाटर है उसके अंदर ड्राई होने देते हैं। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। सो दिस वॉज द डांडी मार्च जो गांधी जी ने किया था।